Welcome everyone. Our topic is epidemiology. Myself, Dr. Tushar Kalra. I'm MD in Community Medicine, Senior Resident at Gitanjali Institute of Medical Sciences, Jaipur, Rajasthan. So let's begin our session. Our specific learning objectives are to define and learn the basic concepts in epidemiology and to know how epidemiology has helped to control the various diseases through examples. Now, moving on to definition, it is a study of distribution and determinants of health-related states or events in a specified population and application of this study to control the health problem. Now, epidemiology stands for epi, that is upon, and demos means people, and logos means study. So, broad definition of study epidemiology can be defined as study, that is, it includes surveillance, observation, hypothesis testing, analytic research and experiments. Distribution, it refers to analysis of time, person, place, and classes of people that are affected. Determinants, that is, it includes factors that influence health, biological, chemical, physical, social, cultural, economic, genetic, and behavioral. And health-related states or events, it refers to diseases, causes of death, behaviors such as use of tobacco, positive health states, reaction to preventive regimes, and provision and use of health services. Then, in a specified population, what does it mean? It includes those with identifiable characteristics such as occupational groups and application of this to prevention and control. That is aim of the public health, that is to promote, protect, and restore the health. Aim is to obtain, interpret, and use health information to protect, promote, and restore the health, to reduce or remove diseases, and to advance scientific knowledge. Objectives are to identify the etiology or cause of disease and its relevant risk factors, to determine the extent of disease in the community, study natural history and prognosis of disease, evaluate both existing and newly developed preventive and therapeutic measure, and foundation of developing public policy. Uses of epidemiology is healthcare management, understanding the disease process, public health practice, and clinical and preventive practice. Now, what is an epidemiological approach? So, first is asking question that is related to health event, that is define, count, and divide. So, what is affected, who, person, then when, that is time, place, compare the rates over time for different group of people, and so what? Apply the conclusion drawn in the form of clinical and public health policy. The second is related to health action. So, what can be done to reduce the problem and its consequences? How can it be prevented in the future? What action needs to be taken by the community? What resources are required? How are the activities to be organized? What difficulties may arise and how might they overcome? Now, second is making the comparison. So, comparison of two groups, that is one having the disease and one not having the disease. Crucial differences in the host and environmental factors between those affected and not affected. Needs to ensure the comparability. Facts must be accurate and gathered uniquely. And randomization and standardization should be done. Now, how the patterns are changing. So, 1900s में क्या था, निमोनिया थे, ट्यूबी था, डायरिया था, हार्ट डिजीज था, स्ट्रोक, किडनी डिजीज, एक्सीडेंट्स, कैंसर, ये सब थे. एंड 2014 में क्या हुआ, हार्ट डिजीज, कैंसर और लोअर रेस्पिरेटरी डिजीजेज, एक्सीडेंट, स्ट्रोक, ये सब टॉप पे आ गए. सो लाइफस्टाइल डिजीजेस आजकल मोस्ट कॉमन है देन द इन्फेक्शियस डिजीजेस. एंड ये एक एग्जाम्पल है और साइन इन द सिमेट्री इन डूडली. सो कोलेरा जो इतना फुल हो गया था कि जो मर रहे थे उनके लिए भी जगह नहीं बची थी. दे वर नॉट परमिटेड टू बी बरीड आफ्टर द संडे नेक्स्ट. सो एक एग्जाम्पल है कि कितना कोलेरा एक मेजर इशू था एट दैट टाइम. Then Ignaz Semmelweis and childbirth fever एक एग्जाम्पल है जो हमें समझना है. So Ignaz Semmelweis born in 1818, specialized in obstetrics. So childbirth fever, puerperal fever, it was related to childbirth or to the period after the birth. वो एक मेजर इशू था in the hospital. Mortality rate was higher, that is 25%. और बहुत सारी थियरीज थी कि एटमॉस्फेरिक टॉक्सिन से होता है, एपिडेमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सम वुमेन से होता है, पुट्टी एयर, सोलर और मैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस से होता है. सो सेमलवीज वाज इन चार्ज ऑफ फर्स्ट ऑब्स्टेट्रिक क्लिनिक इन वियना इन जुलाई 1846. सो दो क्लिनिक थे, फर्स्ट क्लिनिक एंड सेकंड क्लिनिक. सो फर्स्ट क्लिनिक में थे फिजिशियन एंड मेडिकल स्टूडेंट्स, सेकंड में थे मिडवाइफ्स. सो फिजिशियन क्या करते थे, स्टूडेंट्स क्या करते थे, दे परफॉर्म ऑटोप्सीज, और जो पहले क्लिनिकल केयर के पहले करते थे देन वो क्लिनिक में जाते थे फॉर द हॉस्पिटलाइज वुमेन. और इसमें मोर्टेलिटी बहुत हाई था इस हॉस्पिटल्स में, दैट इज 16%. एंड मेनी ऑफ द वुमेन इन लेबर हैड मल्टीपल एग्जामिनेशन बाय द फिजिशियन एंड बाय मेडिकल स्टूडेंट्स लर्निंग द ऑब्स्टेट्रिक्स. सो क्या होता था, एक ट्रोमाटाइज हो जाता था टिश्यू ऑफ द वजाइना एंड यूट्रस. सो पर्पुलर फीवर फैल जाता था एंड मोर्टेलिटी वाज हाई. जो कि सेकंड क्लिनिक में नहीं था, दे डिड नॉट परफॉर्म द ऑटोप्सी मिडवाइस, दे वर डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन हॉस्पिटल केयर. मोर्टेलिटी वाज 7%, नो एग्जामिनेशन, नो इंजरी टू द टिश्यू एंड नो ट्रोमेटिक टिश्यू वाज फाउंड. सो एक ग्राफ है, जो लेफ्ट साइड का ग्राफ है वो दिखा रहा है कि मोर्टेलिटी कैसे ज़्यादा थी फर्स्ट क्लिनिक में देन द सेकंड क्लिनिक. एंड जो राइट साइड में जो ग्राफ है वो दिखा रहा है कि जब सेमलवीस ने हैंड हाइजीन इंटरवेंशन करा इन द फिजिशियन को बोला गया कि आप हैंड हाइजीन मेंटेन करिए, हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस को आप लागू करिए बिफोर विजिटिंग द हॉस्पिटल, देन द मोर्टेलिटी केम डाउन ड्रास्टिकली एंड इट वॉज कंपेरेबल टू द सेकंड क्लिनिक. नाउ another example is Edward Jenner and smallpox. Smallpox हमें पता है eradicate हो चुका है. So Edward Jenner was born in 1749. Late 18th century, 4 lakh people died from the smallpox, and 1/3 of the survivors were blinded as a result of corneal infection. So those who survived smallpox were subsequently immune to the disease. Now vaccination. So it is derived from the word vacca, the Latin word for cow. So 8-year-old volunteer James Phipps. So Jenner was convinced that the cowpox would be protective, and 6 weeks later, to test his conviction, he inoculated the child with material taken from smallpox pustule. And ethical issues and implication of this experiment, ये हमें समझने की ज़रूरत है कि क्यों, मतलब ह्यूमन में उस वक्त अलाउ करा ऐसा करने के लिए. आजकल तो हमें एथिकल परमिशन और सब लेना पड़ता है. इन 1976 WHO began international efforts to eradicate the smallpox using the vaccination with vaccinia virus cowpox, and in 1980 the WHO certified that smallpox has been eradicated.
Another classical example is John Snow and cholera. John Snow 19th सेंचुरी में थे, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने क्लोरोफॉर्म दिया था क्वीन विक्टोरिया को ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। एंड रजिस्ट्रार जनरल जो थे विलियम फार, वो उनके ओपोनेंट थे, उनमें मेजर डिसएग्रीमेंट था अबाउट द कॉज ऑफ कोलेरा। फार कहते थे कि क्लाउड की वजह से होता है, माइस्मा की वजह से होता है। सो एलिवेशन, जितना एलिवेशन कम होगा उतना ज़्यादा जैसे डेथ होगा, जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ेगा सो डेथ भी कम होता चला जाएगा। ये विलियम फार का डाटा है। देन वाटर जो था, जो थेम्स रिवर से वहाँ पे होता था, जो सप्लाई होता था इन द हाउस होल्ड्स। सो बहुत सारी कंपनियाँ थी, तीन चार कंपनियाँ थी। सो लैम्बर्ट कंपनी थी, जिन्होंने क्या करा कि अपना जो सोर्स था वो ऊपर ट्रांसफर कर लिया, जैसे क्लीन वाटर की तरफ। एंड जो बाकी कंपनियाँ थी वो पोल्यूटेड वाटर से लेती थी अपना पानी, एंड दे सप्लाई द वाटर टू द हाउसेस। सो एक टर्म है शू लेदर एपिडेमियोलॉजी। इसमें क्या होता है, हाउस टू हाउस सर्वे होता है, काउंटिंग ऑफ ऑल द डेथ्स फ्रॉम कोलेरा इन ईच हाउस एंड डिटरमाइनिंग विच कंपनी हैज सप्लाइड द वाटर टू ईच हाउस। सो डेथ्स फ्रॉम कोलेरा पर 10,000 हाउसेस बाय सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई लंडन 1854। तो साउथ वार्क एंड वॉक्सल कंपनी थी, इसके नंबर ऑफ हाउसेस थे 40,046, उनमें डेथ्स भी ज़्यादा थी और डेथ पर 10,000 हाउसेस भी ज़्यादा थे। एंड लैम्बर्ट कंपनी थी, जिसने अपना जो वाटर सप्लाई है जो क्लीन एरिया की तरफ ट्रांसफर करा था, उसमें डेथ कम थी और डेथ पर 10,000 हाउसेस भी सबसे कम थी। एंड अदर डिस्ट्रिक्ट इन लंडन 56 पर 10,000 हाउसेस जो डेथ्स थी ड्यू टू कोलेरा। टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन क्या है, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। इसको हम आगे पढ़ेंगे अगले हमारे सेशंस में। एंड हाउ टू इंटीग्रेट प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। इसको हम कैसे समझे कि प्रिवेंशन ट्रीटमेंट एक ही पार्ट है। सो प्रिवेंशन इज एन इंटीग्रल टू पब्लिक हेल्थ एज वेल एज इंटीग्रल टू द क्लिनिकल प्रैक्टिस। फिजिशियन का रोल क्या है, टू मेंटेन हेल्थ एज वेल एज टू ट्रीट द डिजीज। एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इंक्लूड्स मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रिवेंशन। सो वेन एवर वी ट्रीट इलनेस, जब भी हम कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, वी आर प्रिवेंटिंग द डेथ, कुछ ना कुछ हम प्रिवेंट कर रहे हैं, जैसे कॉम्प्लिकेशन, दैट इज प्रिवेंटिंग द इम्पैक्ट ऑन द फैमिली। एंड थेरेपी जो हम देते हैं उसको हम सेकेंडरी और टर्शरी प्रिवेंशन में काम करते हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं जो एपिडेमियोलॉजी ने कैसे कंट्रोल करा है, हेल्प करी है एपिडेमियोलॉजी का एप्लीकेशन इन द कंट्रोल ऑफ डिजीजेस। सो फर्स्ट स्मॉल पॉक्स से इरेडिकेट हो गया था। तो एपिडेमियोलॉजिकल मेथड यूज हुए थे एस्टैब्लिश करने के लिए कि देयर आर नो नॉन ह्यूमन होस्ट, नो सब क्लिनिकल केसेस, रिकवर्ड पेशेंट्स आर इम्यून, कैन नॉट ट्रांसमिट द इन्फेक्शन, स्मॉल पॉक्स डज नॉट स्प्रेड रैपिडली, एंड ट्रांसमिशन इज जनरली वाया लॉन्ग लास्टिंग ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से होता है। मोस्ट पेशेंट्स आर बेड रिटर्न, इसलिए वो ट्रांसमिट नहीं कर पाते थे जो स्मॉल पॉक्स है, इसलिए हम उसे इरेडिकेट करने के लिए हम उसे इरेडिकेट कर पाए थ्रू द वैक्सीनेशन। यानी मिनामाटा डिजीज़ है, तो सबसे पहले सस्पेक्ट था कि ये कुछ मेनिंजाइटिस का केस है, इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस का, लेकिन बाद में ऑब्जर्वेशन करा कि 121 केसेस का ये तो मिनामाटा बे से हैं, और खासकर जो फिशिंग जो फैमिली होती है, जो फिशरमैन होते हैं, उनकी फैमिली इन्वॉल्व है। सो ऐसे हमने स्टैब्लिश करा कि जिसने जो पॉइजनिंग ऑफ द फिश है, ये मिनामाटा डिजीज़ फैला है, नॉट ड्यू टू एनी जेनेटिक और एनी अदर इन्फेक्शियस कॉजेज। सो ये था मिनामाटा डिजीज़। देन ऐसे ही आयोडीन डेफिशिएंसी, सो आयोडाइज साल्ट हमने यूज़ करा टू प्रिवेंट द आयोडीन डेफिशिएंसी। ऐसे ही HIV के एपिडेमियोलॉजी एंड प्रिवेंशन हमने स्टैब्लिश करा। सो एपिडेमियोलॉजी का ये एग्जांपल्स हैं कि एपिडेमियोलॉजी ने कैसे हेल्प करी है टू कंट्रोल द डिजीजेस। इन कंक्लूजन, एपिडेमियोलॉजी एक इनवैल्यूएबल टूल है ऑन विच द इफेक्टिव प्रिवेंशन प्रोग्राम्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड, एंड वी कैन इवेलुएट बोथ न्यू थेरेपीज एंड ऑलरेडी एक्जिस्टिंग थेरेपीज। एंड अल्टीमेट गोल क्या है, टू इम्प्रूव द कंट्रोल ऑफ द डिजीज, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, एंड एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। My references are Leon Gordis, Kepa textbook and textbook of community medicine by Dr. Rajveer Palwar. Thank you so much. Like, share and subscribe to my channel.